Let us start. Hello. Let us start. Yes, sir. Yes. Okay. Sir, chapter unit number 5. Unit number 5 we have started. Name of the unit is functions. Yesterday we have seen an definition of function, significance of function, classification of function, collection or group of statements or instructions is nothing but function. Yes. Sometimes we can call it as subprogram.
if we are considering main program, so part of that main program is nothing but sub program. It means collection or group of instructions. Certain statements we are writing in the definition of user defined function. So two types of functions basically you will find in all the languages: user defined functions as well as library functions. Library functions are the standard functions which are an already defined, okay, predefined functions. Sometimes we can call them as predefined functions, and these predefined functions are directly we are using in our program. Main function will call those library functions. For what purpose main function is calling, that purpose will be executed and we will get our desired output. Yes, function will be executed, it will perform its duties. And similarly, user defined function, if you will be using in your program, so user defined function means what? As a programmer or as a developer, and we are defining our own functions, and in such cases, if user defined function we are using in our program, three important things we will have to remember. Number one, काय असणार ती? Declaration of user defined function. Yes, hello. Yes, Hello. sir. Then calling of the user defined function and definition of user defined function. If calling you will miss, that function will not be called, code will not be executed. Yes. Yes, sir. How to define our own user defined header files, that also we have seen. Barabar? Yes, आठवतं का? sir. So today we will understand and how to, what is this, what is the significance of return statement. So a C program, screen दिसते का? Understand C program to understand concept of call by value type of function. बघितलं का हो आपण? Hello, नाही ना? Hello, hello. A C program to understand call by, बघितलंय का? Call by value type of function. Hello. नसणार, बघितलं आठवत नाही मला, पण काय बघा, हॅश include stdio.h hash include, let us include an header files. Without main function, program will not be executed. Main function is required. CLR ACR is standard library function. Get.ch is also standard library function. So before CLR ACR, we can declare our variables. And if you are using user defined function, so we are declaring our user defined function before main function. Yes, yesterday we have seen. Hello. Yes, sir. हाँ, so यूजर डिफाइंड फंक्शन को अगर हमको डिक्लेयर करने का है, तो मेन फंक्शन के डेफिनेशन के पहले वी कैन डिक्लेयर आवर यूजर डिफाइंड फंक्शन. डिफाइन करने का है मतलब उस फंक्शन को, वो फंक्शन है ना, क्या एग्जीक्यूशन कर, उससे क्या एग्जीक्यूशन करवा के लेने का है ना, दैट दीज ऑल इंस्ट्रक्शंस वी कैन राइट इन द यूजर डिफाइंड फंक्शन, एंड दैट वी आर कॉलिंग इट एज इट इज अ डेफिनेशन. उसको हम डेफिनेशन बुलाते हैं. यस. और कॉलिंग जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन का, कॉलिंग जो है वो मेन फंक्शन के अंदर हम कर रहे हैं. So let us declare, है ना, let us declare our user defined function, and which is that user defined function is type of call by value type of function. So how to declare an, so before this I will write an कौन सा प्रोग्राम, यहाँ पे हम दो जो इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल्स है उनका एडिशन वाला प्रोग्राम लेंगे, है ना, एंड कॉल बाय वैल्यू टाइप ऑफ प्रोग्राम यूज करके लिखेंगे वो. ठीक है. सो हियर आई एम राइटिंग एंड टू परफॉर्म, किसके लिए लिख रहे हैं? टू परफॉर्म एडिशन ऑफ टू इंटीजर नंबर्स.
F2 तो void डेटा टाइप लिया, ठीक है, फंक्शन का नाम जो है वो सम लिया, दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन सेमीकोलन, सो वी कैन कॉल इट एज एन कॉल दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ कॉल बाय, ऐसा लिखा तो वो क्या हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, यस लास्ट टाइम देखा था लास्ट सेशन में, हेलो, खाली इतना ही लिखा तो वो डिक्लेरेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन हुआ, सम इज आवर यूजर डिफाइंड फंक्शन. Now, in call by value type of function, how many values you will be passing and from main function to user defined function? In that case, we will be writing an data type of both the values. सबसे पहले है ना, सबसे पहले let us try to understand what is the significance of an call by value type of function. So call by value type of function is helping us, okay, to pass an values from main function to user defined function. हमारा जो user defined function sum है, इसके अंदर हमको वैल्यू पास करना है ना, मेन फंक्शन से है ना, मेन फंक्शन में जो वैल्यू रहेगा, वैल्यूज रहेगा, वो वैल्यूज हमको पास करना है ना सम फंक्शन के अंदर. एंड इफ विल बी पासिंग एन वैल्यूज फ्रॉम मेन फंक्शन टू सम फंक्शन, एट दैट टाइम we will have to use a call by value type of function, or it is also called as pass by value type of function. Pass by value means what, we are passing a value from main function to user defined function. So therefore call by value is also called as call by value is also called as call by value is also called as pass by value, pass by value type of function. We are passing value from main function to user defined function. Okay, hello, hello, yes. Yes, sir. आपण मला वाटतं लास्ट टाइमला जो प्रोग्राम लिहिला ना, लास्ट लेक्चरला, तो कसा लिहिलता आठवतं का बघा ना, मी तो परत एकदा लिहायचा प्रयत्न करतोय ना. void sum in the round bracket we declared our variable here itself int a comma b comma c, printf we are entering values of a and b, and please enter a, and please enter a, and scanf %d comma ampersand a, control insert copy, shift insert paste. Similarly, let us enter value of bn through keyboard. So this is the value of bn. After entering values of a and b, let us perform addition. C is equal to an a plus b. So addition will be performed. Let us display a result on the output screen. Addition is equal to %d comma c. Yes, this is definition. And yesterday we have seen this is definition of user defined function sum. This is declaration of user defined function sum. Now let us call, and if we will not call, so we will not get anything on the output screen. That also yesterday we have seen. So blank screen you will get. You will have to call your user defined function. I'm calling my user defined function sum. Okay, here I will write an calling of user defined function. So this is calling, and this is calling like CLR SCR. We are calling our sum function. Sum function is user defined function. User means what? As a programmer, I have defined my own function in the program, and that function we are calling over here. And so this is calling of the user defined function. This is declaration of user defined function, and this is the definition of user defined function. So here I can write, okay, definition of a user defined function. Yes. Now, if I will execute this program, so main function will call to CLR ACR function, output screen will be cleared. Then main function will call to sum function, and when you will call when sum function will be called and by the main function, control of the computer will jump from and calling to the definition of sum function, and entire code of and sum function will be executed at the end. And after execution of some function, control of the computer will jump and back to the main function and get ch. Last statement will be executed, that is get ch, because of which we will be getting output on the output screen. It will be holding it. Get ch function will be holding our output screen, and we will get an output on the desired output on the output screen. Yes. Hello. Yesterday, this is revision and yesterday sessions revision. And yes. Hello. Yes, sir.
हे नॉर्मल फंक्शन झाला है ना, ये नॉर्मल फंक्शन हुआ है हमारा, ठीक है। अभी हम कॉल बाय वैल्यू टाइप ऑफ फंक्शन का सिग्निफिकेंस और वो कैसे इस्तेमाल में होगा है ना, हाउ वी कैन यूज इट है ना इन आवर प्रोग्राम, वो कॉन्सेप्ट जो है how we can use it in our program, and let us try to understand now here what is happening. Values of a and b and we are entering because of some function, am I right? Hello. Because of some function we are able to enter values of a and b and through keyboard we are entering values of a and b. Yes, बिकॉज सम फंक्शन के अंदर लिखा है वो पूरा 4 स्टेटमेंट्स, उसकी वजह से ए एंड बी का वैल्यू जो है वो मशीन हमसे ले रहा है और वो एग्जीक्यूशन का काम कौन कर रहा है, सम फंक्शन। यस, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो हमको करना क्या है, ए एंड बी का वैल्यू जो है वो मेन फंक्शन के अंदर हमको लेने का है। इट मीन्स वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विल बी नोन टू द मेन फंक्शन। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो है ना, ये जो कोड है ना, दैट कोड आई एम कॉपिंग नाउ फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम सम फंक्शन से कॉपी करके लिया, वो मेन फंक्शन के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये जो 4 स्टेटमेंट्स है इसको उठा के सम फंक्शन के पहले लिखा। यस, मतलब ए एंड बी का वैल्यू जो है ना वो कौन कौन सा फंक्शन ले रहा है अभी है ना, इन दिस केस मेन फंक्शन ले रहा है, ठीक है। हेलो हेलो, Yes, यस। sir. तो ए एंड बी जो है उसका इनपुट मेन फंक्शन ले रहा है ना। व्हाट यू विल हैव टू डू, you will have to pass and values from and main function to user defined function। अभी कैसा है देखो है, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है ना ए एंड बी है ना, बोथ वेरिएबल्स वी हैव डिक्लेयर्ड इन द मेन फंक्शन and in the sum function we are performing addition। if you will compile your program it will be throwing है ना errors, 3 errors। सो जो C है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। A जो है वो भी अनडिफाइंड है, B जो है वो भी अनडिफाइंड है। इसका मतलब ये जो 3 वेरिएबल्स हैं, these 3 variables are an undefined for an sum function। ये जो 3 वेरिएबल है ये सम फंक्शन के लिए अनडिफाइंड है। इसका मतलब ए और बी जो डिक्लेयर किया है उसका स्कोप है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय स्कोप ऑफ द वेरिएबल। सो स्कोप ऑफ द वेरिएबल इज है ना ग्लोबल ओवर हियर है, ये लोकल है सॉरी, लोकल स्कोप है ना। ये वेरिएबल का स्कोप जो है वो लोकल है। लोकल मतलब क्या कि ये जो ए एंड बी फंक्शंस वी हैव डिक्लेयर्ड इन द मेन फंक्शन, सो these are limited and its scope is limited for main function। मेन फंक्शन के बाहर ए एंड बी का वैल्यू वी कैनॉट एक्सेस, वी कैनॉट यूज। यस, इसलिए ये ए एंड बी जो वेरिएबल्स है वो लोकल वेरिएबल्स है, उसको हम लोकल वेरिएबल्स बोलेंगे। हेलो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, ठीक है। यस लिख के थोड़ा सा अलग प्रोग्राम लेंगे, सेव एज 1001.c, उस इस यहाँ पे बाद में आएंगे, ठीक है। अभी क्या करता हूँ देखो हम, ये रिमूव किया, ठीक है। printf /n a is equal to value of a and b I wanted to display n, तो यहाँ पे a लिखा, a राउंड ब्रैकेट कॉमा, ठीक है। सिमिलरली कंट्रोल इंसर्ट कॉपी, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, यहाँ पे b लिखेंगे, b का वैल्यू भी हम डिस्प्ले करने वाले हैं, ठीक है। ये सम फंक्शन जो है which is helping us to display the value of a and b है ना on the output screen। so we declared है ना a and b, okay, a and b in the main function and we are asking machine to display value of a and b by some function। are you understanding what I'm doing? Hello hello, a and b I declared in the main function, values of a and b also we are accepting and with the help of main function, but I'm asking machine to display value of a and b with the help of some function। yes, hello hello, okay।
Yes, sir. I am executing this program. It will be throwing two errors, undefined symbol A, undefined symbol B. तो ये जो A and B जो both variables we used in the main function, both variables are unknown to the computer, unknown to the machine, because A and B कैसा है देखो, है ना, ये दोनों वेरिएबल जो है ना दिखने में सेम है ना, ए और बी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वैसा ही ए एंड बी यहाँ पे है, लेकिन उसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है ना. ए एंड बी वेरिएबल्स वी डिक्लेयर्ड इन द मेन फंक्शन, इट मींस इनका स्कोप जो है इसके अंदर रहेगा है ना. ये ए एंड बी जो है ना ये मेन फंक्शन के अंदर ही उसका वैल्यू जो है वो मशीन को समझ में आता है, ऐसा बोलेंगे हम, ठीक है. बट ए एंड बी विच वी आर यूजिंग इन द सम फंक्शन, सो इट्स स्कोप इज not limited, therefore machine is not able to understand what is this A and B. Therefore we are getting two errors, undefined symbol A, undefined symbol B. Machine is not able to understand A and B which are present in the sum function. Yes, hello. Yes, sir. Yes, sir. Now if I will declare int A comma B, so I am declaring A and B and both variables twice. दो बार हम डिक्लेयर कर रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर एंड सम फंक्शन के अंदर. अगर अभी कंपाइल करेंगे तो एरर नहीं देगा, ओके, बट मीनिंग ऑफ दिस ए एंड दिस ए इज टोटली डिफरेंट. ओके, हेलो हेलो. इट मींस ए एंड बी, ये वाला ए एंड बी जो है इसका स्कोप जो है वो सम फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, डिक्लेयर्ड है. मतलब ये ए और ये ए दोनों अलग अलग ए हैं. यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द मेन फंक्शन. सो आई एम डिस्प्लेइंग /n वैल्यू ऑफ ए इन main function is equal to %d comma a. Similarly, control insert copy, shift insert paste. Let us display value of bn in the main function. तो यहाँ पे we are entering value of a and b and through keyboard, and so value of a and b we will get whatever values will be entering through keyboard. Machine will display a value of a and b over here, and but when we will call this sum function, at that time control of the computer will jump from sum function to the definition of sum function, and here we are displaying values of a and b. So machine will display garbage values of a and b because values are not defined. We are not entering values of a and b in the sum function, we are entering values of a and b in the main function. Yes, hello. Yes, Yes, sir. let us check it what is happening. 2 and 3 है ना, these two values of a and values of b है ना, we are entering because of main function. तो main function में values of a and b वो दिखाएगा 2 और 3, लेकिन ये जो a is equal to 730 and b is equal to -10 जो दिखा रहा है a and b का वैल्यू, वो सम फंक्शन में से दिखा रहा है. हेलो, यस Yes, sir. तो यहाँ पे थोड़ा सा मोर क्लैरिटी के लिए है ना, मोर क्लैरिटी के लिए है ना, आई विल बी राइटिंग है ना ए इन सम फंक्शन, और ये कोड कॉपी करके कंट्रोल इंसर्ट कॉपी, बी इन सम फंक्शन, F2 सेव किया. अभी देखो है ना थोड़ा सा, यस हमने ए और बी का वैल्यू है ना मेन फंक्शन के अंदर एंटर किया है. तो मेन फंक्शन के अंदर ए और बी का वैल्यू 2 and 3 है, लेकिन सम फंक्शन के अंदर we are checking what is the value of a and b. So value of a we are getting 730 which is garbage value. b का वैल्यू, garbage मतलब wrong value, ठीक है, कचरा बोलते हैं मराठी में, हिंदी में भी शायद कचरा ही बोलते हैं, ठीक है, मतलब wrong values of a and b and which will be displayed on the output screen because of sum function. sum function के अंदर a और b का वैल्यू अलग है. इसका मतलब यहाँ पे जो डिक्लेरेशन किया है ना ए एंड बी का, ये जो दो वेरिएबल्स है उसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है मेन फंक्शन के लिए. जब हम सम फंक्शन का कंसिडरेशन करेंगे तो ये जो दो वेरिएबल्स है उनका वैल्यू अलग है. और दिस इज दी, मतलब इसको हम ग्लोबल बोले, लोकल बोलेंगे, लोकल. ये लोकल है. लोकल मतलब क्या कि एक ही कंट्री के अंदर है,
उसका स्कोप लिमिटेड है. फॉर एग्जाम्पल you can consider Pepsi, Coca-Cola. These are the two products and which are internationally recognized. Let us consider both products and both are cold drinks. Okay, दोनों भी cold drinks है. कोका कोला या पेप्सी कौन सा भी कंसिडर करो, जो इंडिया में मिल रहा है वैसा ही आपको अमेरिका में मिलेगा. ओके, सेम प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग इन different countries. So we are calling that product as global product. Yes, हेलो. ऐसा एक प्रोडक्ट कुछ है जो इंडिया में भी मिल रहा है, पाकिस्तान में मिल रहा है, चाइना में मिल रहा है, अमेरिका में मिल रहा है, तो वो प्रोडक्ट क्या हुआ? उस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे ना? ग्लोबल प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल एंटायर वर्ल्ड, इन द एंटायर वर्ल्ड. यस, which is available in entire world. Such products we are calling them as global products. Hello. Yes, hello. Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो है, लोकल प्रोडक्ट्स भी रहते हैं ना, कुछ लोकल प्रोडक्ट्स. मीन्स व्हाट? प्रोडक्ट्स आर लिमिटेड है ना, लोकली है ना, लोकली. इट मीन्स इफ सपोज यू आर मैन्युफैक्चरिंग वन प्रोडक्ट एंड इफ इट इज अवेलेबल इन ओनली वन कंट्री, वी आर कॉलिंग दैट प्रोडक्ट एज लोकल प्रोडक्ट. दैट प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन अनदर कंट्रीज. दूसरे कंट्री में वो मिलेगा नहीं. यस, कभी कभी तो ऐसा रहता है कि एक राज्य में है, इफ यू आर कंसिडरिंग वन स्टेट एंड in that state that product is developed, that product is known for only that state. उसके स्टेट, वो स्टेट के बाहर भी वो प्रोडक्ट नहीं मिलता है. यस, हेलो. Yes, sir. अभी यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में चिरमुरा मिलता है ना, उधर मिलता है क्या? जम्मू कश्मीर में. हेलो, साकिब है क्या वहां पे? हेलो, चिरमुरा बोलते हैं हम. देखो उसका भेल बनाते टाइम वो यूज करते हैं. उधर मिलता है क्या? नहीं पता होगा उसको. हेलो, हेलो, साकिब है क्या अंदर? हेलो साकिब, आर यू देयर? हेलो, शायद डिस्कनेक्ट हुआ है, पता नाही. येतोय का लक्षात बाकीच्यांना? हेलो. यस, Yes, sir. काही प्रोडक्ट जे आहेत ते लोकली मिळतात, मग राज्यामध्ये असेल, डिस्ट्रिक्ट मध्ये असेल. एका डिस्ट्रिक्ट मध्ये मिळणारा प्रोडक्ट हे दुसऱ्या डिस्ट्रिक्ट मध्ये मिळणार नाही, सेम काइंड ऑफ. बट इफ यू वॉन्टेड टू डेव्हलप युअर प्रोडक्ट विच विल बी रेकग्नाइज्ड अँड throughout the world, and such kind of product we are calling them as an global products whose presence is available in each and every country, for each and every continent, and that product is available. प्रत्येक खंडामध्ये, प्रत्येक देशामध्ये that product is available. Such products we are calling them as global products. Right now A and B we are declaring in the sum function. It means this is the local variable for the sum function. Okay, hello. म्हणजे हे इथं मॅन्युफॅक्चर झालंय, ह्यांचा स्कोप जो आहे तो लिमिटेड आहे इथल्या पुरताच. जर मी इथे व्हॅल्यू दिली आहे ना, ए ची व्हॅल्यू समजा 90 दिली, ओके, अँड व्हॅल्यू ऑफ बी आई एम एंटरिंग एज 10. सो व्हाट विल हैपन? सम फंक्शन के अंदर ए एंड बी का वैल्यू 90 एंड 10 रहेगा, और ए एंड बी का वैल्यू इन द मेन फंक्शन वो इनपुट कर रहे हैं हम कीबोर्ड थ्रू, है ना, जो भी इनपुट करेंगे वो रहेगा. हेलो, यस, हेलो, हेलो. Yes, sir. मतलब जो ए एंड बी है अभी वो नहीं है, साकिब नहीं है, मराठीत आपण थोडंसं सांगू. ए आणि बी है क्या? तो फिर आंसर क्यों नहीं दे रहे? हेलो सर, मेरा नेट कनेक्शन खराब हो गया था सर अभी. हाँ, बारिश भी हो रहा है यहाँ पे जोर से हो रहा है. वहां पे हो रहा है क्या? हाँ सर, कभी कभी होता है सर, मेरा बंद हो जाता है घर से. हाँ हाँ हाँ. उधर बारिश में क्या पानी गिरता है या बर्फ? हेलो, पानी सर. पानी. तो किधर बर्फ किधर रहता है? बर्फ गिरती है सर, लेकिन जनवरी और फरवरी में गिरती है. ओके, मतलब वो विंटर सीजन में गिरता है. हाँ सर. ओके, वेरी गुड. तो अभी देखो है ना, क्या बताया था, ये समझ में आया क्या आपको? लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल. हेलो, लोकल प्रोडक्ट्स, ग्लोबल प्रोडक्ट्स. तो मैं बात क्या कर रहा था एक्चुअली, हमारे यहाँ पे भेल 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 खाया है क्या? उधर मिलता है क्या? पता नहीं, जम्मू कश्मीर में. हाँ सर, मिलता है यहाँ पे भी. हाँ, तो वो चिरमुरा बोलते हैं हम इधर. तो देखो अभी वो जो प्रोडक्ट है ना,
व्हाट आई वाज टॉकिंग है ना, वो जो भेल है वो अमेरिका में या चाइना में मिलता है कि नहीं पता नहीं है, अलग टाइप का मिलेगा, लेकिन सेम काइंड ऑफ हमारे इंडिया में जो मिलता है वो नहीं मिलेगा। यस, हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. तो मतलब कुछ प्रोडक्ट्स रहेंगे जो वर्ल्ड वाइड मिलता है। फॉर एग्जांपल पेप्सी रहेगा, कोका कोला रहेगा है। आप मैच वगैरह देखते हो तो देखो है ना, हर एक कंट्री के लिए वो मतलब इंटरनेशनल प्रोडक्ट है वो है। पेप्सी आपको इंडिया में भी मिलेगा, पाकिस्तान में मिलेगा, चाइना में मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा, कोका कोला भी वैसा ही है। लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे रहेंगे जो लोकली वी आर मैन्युफैक्चरिंग, जो ग्लोबली मिलेगा नहीं आपको है। तो उस वैसे प्रोडक्ट्स को हम लोकल प्रोडक्ट्स बोलेंगे, जिसका स्कोप लिमिटेड रहेगा वो रीजन के लिए है। अगर कुछ ग्लोबल प्रोडक्ट्स रहेंगे तो वो हर एक कंट्री में, हर एक जिले में, हर एक गांव में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। वी आर कॉलिंग सच प्रोडक्ट्स एज ग्लोबल प्रोडक्ट्स। अगर वो स्पेसिफिक रीजन के लिए मिल रहा है तो उसको हम लोकल प्रोडक्ट्स बोलेंगे। यस, हेलो। Yes, sir. तो वैसे वैसे यहाँ पे क्या हुआ है कि ए एंड बी जो वेरिएबल्स है वो सम के अंदर डिक्लेयर किया है हमने। सिमिलरली मेन फंक्शन के अंदर भी ए एंड बी का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया है, लेकिन बोथ ए एंड बी वो अलग अलग है। दिखाई देने में सेम है ए और बी, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक एक पर्सन का नाम हम लेंगे है ना, इमेजिनरी पर्सन है, सोचो है ना, राहुल शिंदे बोल के इमेजिनरी पर्सन है ना, विच इज इन इंडिया एज वेल एज इन अमेरिका है ना। तो ऐसा हो सकता है नाम और क्या देखो है ना, नाम और नेम और सरनेम है ना, नेम और सरनेम है, बोथ सेम रह सकते हैं लेकिन पर्सन्स डिफरेंट रह सकते हैं। हेलो, यस। Yes, sir. राहुल शिंदे इन इंडिया एंड राहुल शिंदे इन अमेरिका है। नाम पूरा सेम है लेकिन पर्सन्स अलग रह सकते हैं। हेलो, यस यस। दिखाई देने में अलग अलग है ना दोनों, लेकिन नाम सेम है। हेलो, वैसा है यहाँ पे। हेलो, ओके, हेलो। Yes, sir. अभी क्या किया देखो है ना, अभी क्या किया, यहाँ से ये 90 10 निकाल दिया, ठीक है। अभी रन किया तो वो गार्बेज वैल्यू दिखाएगा है ना फॉर स्वैप फंक्शन। यस, हेलो। बिकॉज उसका वैल्यू डिफाइन नहीं किया है सम फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन को खाली एंटर किया है वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो मेन फंक्शन के लिए वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर रिमेनिंग सेम, बट फॉर सम फंक्शन गार्बेज वैल्यू मशीन इज डिस्प्लेइंग। now what I wanted to do, I wanted to declare है ना a and b variables globally है, ग्लोबल डिक्लेरेशन करने का है मेरे को है। तो यहाँ से भी निकाल दिया उसको, यहाँ से भी निकाला ए एंड बी को, और इसको थोड़ा सा कमेंट पास किया है। ए एंड बी का वैल्यू जो है वो कीबोर्ड थ्रू हम नहीं लेंगे, ठीक है, उसका ग्लोबल डिक्लेरेशन करेंगे। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन हम हैश डिफाइन से करते हैं, वो भी हमने कौन सा तो यूनिट में सीखा था, याद है क्या देखो है ना, हैश डिफाइन ए 10 यहाँ पे लिखा, सेकेंड हैश डिफाइन बी 20 लिखा। So this is the global declaration of variable a and b. Okay, hello. Before main function, with the help of hash symbol, and we are calling such statements as preprocessor statements. Statements which starts with an hash symbol, we are calling them as preprocessor statements, and these preprocessor statements are helping us to declare our वेरिएबल्स ग्लोबली। तो यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेरेशन हुआ है ए और बी का। ए का वैल्यू 10 रहेगा, बी का वैल्यू 20 रहेगा। ये जो वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन हुआ है वो ग्लोबल डिक्लेरेशन है। इसका मतलब मेन फंक्शन के अंदर भी ऑटोमेटिकली ए का वैल्यू 10 ही मिलेगा, बी का वैल्यू भी 10 ही मिलेगा, और जो सम फंक्शन है उसके अंदर भी हमको ए का वैल्यू 10 मिलेगा और बी का वैल्यू 20 ही मिलेगा। हेलो, यस, हेलो, समजताय का? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बघा है ना, डायरेक्ट we are not entering values of a and b and we declared an value of a and b and globally at the top। तो हमको
मेन फंक्शन के अंदर भी सेम वैल्यू मिल रहा है, सम फंक्शन के अंदर भी सेम वैल्यू जो ग्लोबली डिक्लेयर किया है, ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 20. यस, हेलो. Yes, sir. Have you understood what is meant by global declaration, what is meant by local declaration? Hello, have you understood this? कुछ डाउट है तो पूछो. हेलो. यस, ओके. Yes, sir. एनी डाउट? साकिब, हाँ सर, आ गया समझ. हाँ समझ में आया क्या? हाँ सर. ओके, वेरी गुड. तो अभी हम हमारा जो पिछला वाला प्रोग्राम था वहां पे जा रहे हैं. ठीक है, क्लोज किया शायद. क्या था नाम? 1000 शायद था, 1000.c. यस. अभी हमको करना क्या है देखो एंड, अभी करना क्या है हमको समझ what we understood and what we understood A and B, and if I am declaring in any specific function, so its scope is limited, it means it will become local variable. Yes, ए और बी को हमने डिक्लेयर मेन फंक्शन के अंदर किया तो उसका स्कोप जो है वो लिमिटेड हो गया. मेन फंक्शन में ही उसका वजूद है, उसकी पहचान है. हेलो. यस, हेलो, हेलो. Yes, sir. लेकिन सम फंक्शन के अंदर ए और बी जो है वो अनडिफाइंड रहेगा. अगर हम ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एरर देगा. एबीसी अनडिफाइंड फॉर है ना सम फंक्शन. तो अभी क्या कैसा कुछ तो ऐसा लिखा है ना, इंट सी को हमने, सी जो है ना, सी वो लोकल वेरिएबल है. कौन सा फंक्शन का? सम फंक्शन का. तो ये लोकल वेरिएबल ऐसा लिखा. ठीक है, और ये जो यहाँ पे लोकल वेरिएबल है एंड बी. तो ए एंड बी का वैल्यू जो है वो मेन फंक्शन को पता रहेगा लेकिन सम फंक्शन को पता नहीं है. इसकी वजह से वो अभी देखो है ना, सी का डिक्लेरेशन किया मैंने है ना लोकली, तो जो 3 एरर दिखा रहा था मशीन अभी 2 ही दिखाएगा. यस, अनडिफाइंड सिंबल ए एंड अनडिफाइंड सिंबल बी फॉर एन सम फंक्शन. सम फंक्शन के लिए अभी भी ए और बी का वैल्यूज उसको पता नहीं है, बिकॉज ऑफ व्हिच इट इज डिस्प्लेइंग एन एरर इन दिस प्रोग्राम. अगर वो हमको रिमूव करने का है और कॉल बाय वैल्यू टाइप ऑफ फंक्शन इफ वी वांटेड टू यूज इन आवर प्रोग्राम मींस व्हाट वी विल हैव टू डू. ए और बी का वैल्यू जो मेन फंक्शन को पता है वही वैल्यू हमको पास करना है ना सम फंक्शन के अंदर. हेलो, हेलो, हेलो. Yes, sir. मतलब क्या है कि जो ए एंड बी है ना, यहाँ पे दो जो वेरिएबल्स है ना, वो 2 वेरिएबल को हमको पास करना है ना सम फंक्शन के अंदर. सपोज ये मेन फंक्शन बोले तो इंडिया है, सम फंक्शन बोले तो अमेरिका है. तो हमको क्या करने का है? पहला जो केस था हमने देखा है ना, राहुल शिंदे जो है वो सेम दिखाई दे रहा है लेकिन दोनों डिफरेंट है. यहाँ पे करना क्या है कि हमको जो राहुल शिंदे है उसको इंडिया से अमेरिका में भेजना है. समझ में आ रहा है क्या? हेलो, 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 हेलो. इसका मतलब जो ए एंड बी है वो ग्लोबल नहीं है, लोकल ही है. मेन फंक्शन के लिए, मेन फंक्शन के लिए लोकल है. वैसे वेरिएबल को हमको है ना ग्लोबली सेंड करना है अमेरिका जैसा अमेरिका जैसा कंट्री में. ऐसा कुछ प्रोडक्ट रहेगा है ना इंडिया का, ऐसा कुछ इंडियन प्रोडक्ट रहेगा है ना जो खाली अमेरिका में मिलेगा है ना, बाकी कंट्रीज में नहीं मिलेगा. तो उसको हम ग्लोबल कह सकते हैं क्या? हेलो, दिस इज माय क्वेश्चन टू यू. हेलो. One product which we are manufacturing in India, and if that product we are sending we are sending it through parcel बोलेंगे हम in another country like America, खाली दो ही कंट्री में वो प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब अमेरिका और इंडिया में. So can we call that product as an global product? Hello. No. No, sir. No, No, sir. No. no, because it is manufactured in India. It is manufactured in India means what? It is local variable for India.
And if we wanted to write a program in this way where values are known to the main function and such values we wanted to pass and from main function to user defined function, ये जो a and b है ना उसका वैल्यू हमको मेन फंक्शन से लेने का है ना, उस फंक्शन से लेने का है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मेन फंक्शन से a and b का वैल्यू विल हैव टू पास फ्रॉम मेन फंक्शन टू यूजर डिफाइंड फंक्शन, and that we are passing in this way. In the round bracket simply you will have to pass the values a comma b. So this will become calling of an call by value type of function. Yes, call by value type of user defined function. This is calling of call by value type of user defined function. So call by value type of user defined function को कॉल कैसे किया जाता है? Are you understanding? Hello, are you getting? hello? Yes, sir. तो ये कॉलिंग हुआ. जो डेफिनेशन डिक्लेरेशन है वहां पे हमको क्या करना पड़ता है, which type of values we are passing from main function to user defined function, its type you will have to mention in the round bracket at the time of declaration of call by value type of user defined function. तो यहाँ पे int comma int आएगा. Okay, which type of values you are passing from main function to user defined function, its type you will have to mention in the declaration in the round bracket of some function. तो declaration of call by value type of user defined function ऐसा हुआ. Hello, okay? Yes, sir. तो declaration of call by value type of user defined function, declaration ऐसा हुआ है. नॉर्मल रहता है तो इसमें कुछ आता नहीं है, राउंड ब्रैकेट में कुछ आता नहीं है, ठीक है. वी आर यूजिंग अनदर टाइप ऑफ फंक्शन, वी आर कॉलिंग इट एज कॉल बाय वैल्यू टाइप ऑफ फंक्शन, सो इट्स डिक्लेरेशन चेंजेस. In the round bracket you will have to mention which type of values you are passing from main function to user defined function, its type, its data type you will have to mention in the round bracket. दो बार int क्यों लिखा है, तो two values you are passing from main function to user defined function. If you are passing single value तो आपको int लिखना पड़ेगा एक ही बार. ओके, हेलो. अगर तीन वैल्यू है ना, three integer values, if you are passing from main function to user defined function, in that case you will have to write int comma int thrice in the declaration. Okay, hello, yes, hello. Yes, sir. तो डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज होगा. देखो 3 जगह पे चेंज हुआ है. कॉलिंग में चेंज हो रहा है, डिक्लेरेशन में चेंज हुआ, तो डेफिनेशन में भी चेंज होगा. तो यहाँ पे हमको लिखना क्या है, इन definition of call by value type of function, in definition of call by value type of function, and in the round bracket you will have to mention an variable with its data type. Variable with its data type means int a comma int space b. Okay, hello. तो ये डेफिनेशन हुआ. This is calling, and this is declaration. So have you understood what kind of changes we made over here? And hello. Okay, yes, hello. Yes, sir. थोडक्यात काय झालं बघा ना, ए एंड बी का जो वैल्यू है, ए एंड बी का जो वैल्यू है वो मेन फंक्शन से पास हो रहा है ना, स्वैप ये सम फंक्शन के अंदर. Now if you will compile your program, machine will not throw any kind of error because we are passing value of a and b from main function to user defined function sum. तो अभी a और b का वैल्यू मेन फंक्शन के अंदर जो हम एंटर कर रहे हैं कीबोर्ड थ्रू,
वही वैल्यू आपको सम फंक्शन में मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि वी आर पासिंग वैल्यू फ्रॉम मेन फंक्शन टू यूजर डिफाइंड फंक्शन, देयरफॉर वी आर यूजिंग सम फंक्शन व्हिच इज एन call by value type of function or pass by value type of function, which is helping us to pass the value of a and b from main function to user defined function sum. Yes, hello, hello, hello. Yes, sir. Let us check it. So value of a and b we are entering because of main function. After pressing enter key, so it will call an main function will call to some function, and that some function is now an here it is called by value type of function. Means main function is passing an values of a and b from main function to user defined function, therefore summation you will get and correct summation you will get. Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या हुआ, have you understood? Sometimes here and sometimes while writing the program, while writing the code, and such kind of you will come across with such kind of situation where you will be entering values of a and b and with the help of main function, and same values you will have to use and in the sum function. In such cases you will have to convert your normal function into call by value type of function, which will help you to pass value from main function to user defined function. Okay. Yes. Yes, sir. Yes, sir. समझ लगा? कोण सांगेल शॉर्ट मध्ये आहे ना, इन शॉर्ट आहे ना, हु विल गिव आहे ना सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन और इंफॉर्मेशन अबाउट कॉल बाय वैल्यू टाइप ऑफ फंक्शन, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? हेलो, हेलो, फास्ट, हेलो, हेलो, फास्ट 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 है। डिवीजन ई पीछे है बहुत है। ये डिवीजन कौन सा, ई और जी में एक्चुअली पॉइंटर स्टार्ट हुआ है, पॉइंटर खत्म भी हुआ है शायद जी में है, जी डिवीजन में, और इसमें भी खत्म हुआ है शायद बी में है। हम थोड़ा सा पीछे हैं। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद हमारा खाली एक ही चैप्टर आपका डिवीजन के लिए दो है शायद, पॉइंटर और लास्ट वाला है ना फाइल हैंडलिंग। तो यहाँ पे पॉइंटर खत्म होगा है ना। पॉइंटर स्टार्ट किया है क्या आपके लिए? हेलो, नहीं किया है शायद। यस, ये फंक्शन चालू है हमारा। हेलो, फंक्शन चालू है आपलं? यस, फंक्शन चैप्टर चालू है शायद। हाँ, चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 5 वी विल बी लर्निंग है ना आफ्टर दिस। इसके बाद हम सीखेंगे है ना चैप्टर नंबर 5 जो है पॉइंटर्स वाला। सो हु विल गिव एन सिग्निफिकेंस ऑफ कॉल बाय वैल्यू टाइप ऑफ फंक्शन। फास्ट फास्ट, हमको रिटर्न स्टेटमेंट भी कवर करने का है, तब जाके हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म होगा है ना फंक्शन। तो आज हमको फंक्शन चैप्टर खत्म करके रिटर्न स्टेटमेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के है ना हम क्लोज करेंगे हमारा सेशन। So what you understood, what is mean by call by value type of function and how it is helping us? Hello, fast. What you understood? Hello, hello, hello. यहाँ पे A और B ही लिखना यहाँ पे है ना, A और B ही है ना। If you are writing A and B and instead of A and B also, if you wanted to use another variable, that is allowed and because only your P और Q लिखेंगे, P और Q and तो A और B की जगह पे I can write P और Q, P और Q, sorry P Q। तो यहाँ पे क्या हुआ, A का वैल्यू मतलब ये देखो है ना, A का वैल्यू जो है वो वैल्यू P को जाएगा। We are passing value of A and B है ना from the main function to user defined function। तो सेम वेरिएबल्स यूज किया तो भी चलेगा, दूसरा कुछ अलग वेरिएबल भी यूज किया तो भी चलेगा, बिकॉज सम के वेरिएबल्स है ये, ठीक है। सो सम के वेरिएबल्स है मतलब ये भी लोकल ही है ना? लेकिन उनका वैल्यूज खाली हम पास कर रहे हैं मेन फंक्शन से स्वैप फंक्शन के अंदर। ओके, ऐसा भी अगर रन किया तो भी रन होगा है ना, बिकॉज हैव यू अंडरस्टूड पास बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम सेम रख रहे हैं ए बी। ओके, ए बी। यस, who will explain what is mean by call by value type of function? Fast fast. Hello,
हिंदी में बताओ है, मराठी नहीं आता है तो लेट मी अंडरस्टैंड है. How many of you are confident in Hindi at least? I'm not, I'm not confident in Hindi and in English also, but I'm trying to. I'm learning actually, and I'm learning both languages. Both languages are new for me, English as well as because both are not mother tongue. Mother tongue is Marathi. ठीक है. Hello, who will try? Fast. वेळ नाही आपल्याकडे. Yes, साकिब. साकिब है क्या? हाँ सर. हाँ, क्या मिला आपको है ना इस प्रोग्राम से? सर के जो हम सर डिफाइन करते हैं ना मेन फंक्शन में वेरिएबल सर, वो उसके लिए ये नहीं होते हैं सर एक्सेप्टेबल दूसरे यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए. करेक्ट. तो हमें इसमें थोड़ी चेंजेस करनी पड़ती है, डिक्लेयर भी करना पड़ता है, डिफाइन भी करना पड़ता है यहाँ पे अलग से. हाँ, और कॉल भी करना पड़ता है. यस. हाँ सर. फंक्शन को कॉल किया तो ही वो काम करता है, तो ही एग्जीक्यूशन होता है. यस्टरडे वी हैव सीन इट. बराबर. यस सर. अभी यहाँ पे हुआ क्या है कि हाँ, अभी हुआ क्या है मैं बताता हूँ, उसके बाद आप वंस अगेन यू ट्राई इट. ओके. ये ए और बी जो फंक्शन, ये ए और बी जो वेरिएबल्स है विच वी हैव डिक्लेयर्ड इन द मेन फंक्शन, उसका स्कोप जो है वो लोकल स्कोप है. मतलब इसको हम ए और बी को हम सम फंक्शन में यूज नहीं कर सकते उसका वैल्यूज. तो ये दिक्कत है. टू सॉल्व दिस दिक्कत, ये प्रॉब्लम है. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम व्हाट वी आर डूइंग, आवर नॉर्मल फंक्शन वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू एन कॉल बाय वैल्यू टाइप ऑफ फंक्शन. तो कॉल बाय वैल्यू टाइप ऑफ फंक्शन को उसमें कन्वर्ट करने के लिए राउंड ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल्स हमने लिखे हैं, मतलब वो उसको पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं. ठीक है. ए और बी इन द राउंड ब्रैकेट्स आर parameters or arguments. These parameters or arguments which are having specific value after entry through keyboard, these values were passing from main function to user defined function. Therefore call by value function is helping us to pass the value from main function to user defined function. Okay. हेलो. थोड़ा सा ज्यादा हुआ शायद, पता नहीं कहाँ तक मिला है आपको. कोण सांगते? मराठी, हिंदी, इंग्लिश है.